میں تبدیلی کر دی ہے۔ ترجمان وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی بجٹ 2 جون کی بجائے اب 10 جون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، جبکہ 9 جون کو موجودہ مالی سال کا سروے جاری کیا جائے گا۔ رپورٹ دیکھیے۔ وزارت خزانہ نے بجٹ شیڈیول میں تبدیلی کر دی۔ نیا وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق بجٹ شیڈیول میں تبدیلی کی وجہ IMF سے بجٹ پر مذاکرات فائنل نہ ہونا ہے۔ IMF کے ساتھ بجٹ اہداف طے کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ IMF مشن کا دورہ پاکستان مکمل ہو گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے اہداف ورچوئل مذاکرات میں طے کیے جا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقاتیں۔ وفد نے وزیراعظم سے پاکستان کا موقف عالمی سطح پر بیان کرنے کے لیے رہنمائی لی۔ اسحاق ڈار نے تفصیلی بریفنگ میں سفارتی ترجیحات بیان کی۔ عالمی سطح پر بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کرنے کا مشن، اعلیٰ سطح کے وفود مختلف ممالک میں بھیجنے کی تیاریاں مکمل۔ وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے مشن پر روانگی سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کی۔ عالمی سطح پر پاکستان کا موقف پیش کرنے کی ذمہ داری سونپنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، امید ہے آپ کی قیادت میں وفد پاکستان کا بیانیہ بھرپور انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ وفد کے ارکان اسحاق ڈار سے بھی ملے۔ وزیر خارجہ بولے، وفود مؤثر طریقے سے پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کریں گے اور پیغام امن عام کریں گے۔ ملاقات کرنے والوں میں شیری رحمان، ہینا ربانی کھر اور خرم دستگیر شامل تھے۔ ڈاکٹر مصدق ملک اور فیصل سبزواری بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک فوج نے دلیری کے ساتھ بھارت کو شکست دی، یہ ہم پر اللہ پاک کی خاص مہربانی ہے۔ پاک فوج نے بہترین حکمت عملی اختیار کی، دشمن قیامت تک اس شکست کو یاد رکھے گا۔ پاکستانی قوم کے اتحاد کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد میں مری روڈ انٹرچینج جناح اسکوائر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ اعلیٰ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ افواج پاکستان نے اپنی بہترین حکمت عملی اور دلیری کے ساتھ ہندوستان کو جو شکست فاش دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور اس کی کمال مہربانی ہے۔ پوری قوم کہ اتفاق اور اتحاد کی ایک ایسی شاندار تاریخ ہے جو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ ٹھیک 35 دنوں میں یہ منصوبہ آپ نے جو مکمل کرایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اعلیٰ کارکردگی کا بہترین نمونہ ہے، اور محسن نقوی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ خوددار حملے میں فیتنال ہندوستان ملوث ہے۔ دہشت گردوں کو خوددار حملے کے خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ خوددار میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں 6 بچے شہید ہوئے۔ یہ حملہ اسکول کے بچوں پر نہیں، ہمارے اقدار پر کیا گیا۔ بھارت بلوچستان میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ بھارت 20 سال سے ریاستی دہشت گردی کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت خطے میں امن کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے جارحیت کا نتیجہ دیکھ لیا گیا، دوبارہ کرنے کا شوق ہے تو پورا کر لے، ہم تیار ہیں۔ دہشت گردوں کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دہشت گردوں کو پتا ہے کہ وہ کبھی بلوچستان کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ بلوچ ہمارے بھائی اور ہمارے دل کا ٹکڑا ہے۔ فیتنال ہندوستان بلوچستان کی ترقی کا دشمن ہے۔ بھارت گزشتہ 20 سالوں سے ریاستی دہشت گردی کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے۔ افغانستان ہمارا برادر دوست ملک ہے، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں بننے نہ دے۔ افغانستان ہمارا پڑوسی مسلم ملک ہے، بھارت اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا کا کہنا ہے کہ خوددار میں دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ بس پر نہیں، ہمارے اقدار پر تھا۔ دہشت گردوں نے اسکول کے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ فیتنال ہندوستان اس حملے میں ملوث ہے۔ خوددار حملے میں بھارت ملوث ہے۔ واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل نو کر دی ہے۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل کے CEO ٹم کک کو متنبع کیا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ سے امریکہ میں فروخت ہونے والے آئی فونز امریکہ میں ہی تیار ہوں گے۔
भारत या किसी और मुल्क में नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2025 में सदारती ओहदा संभालने के बाद ये पहला मौका नहीं कि उन्होंने अपने बयानात में भारत को आड़े हाथों ना लिया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब ट्रंप ने हिंदुस्तान को तनकीद का निशाना ना बनाया हो। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका में फरोख्त होने वाले आईफोन्स मुल्क के अंदर तैयार नहीं किए गए तो एप्पल को 25% टैरिफ अदा करना होगा। उनका कहना था कि उन्हें भारत में तैयार होने वाले आईफोन्स में कोई दिलचस्पी नहीं। ट्रंप के इस बयान के बाद प्री मार्केटिंग ट्रेडिंग में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के शेयर्स तकरीबन 3% गिर गए। डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद मर्तबा इंडिया को टैरिफ किंग करार दे चुका है और इल्जाम आयद करते हैं कि इंडिया तिजारती ताल्लुकात को पामाल करता है। इंडिया में अमरीकी मसनूआत पर आयद किए जाने वाला टैक्स 17% है, जबकि ट्रंप ने अपनी नई टैरिफ पॉलिसी में भारतीय अशिया पर 27% टैरिफ लागू किया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को शर्मनाक करार दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शर्म की बात है कि हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना है। पाक भारत सीज फायर के हवाले से भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने दोनों मुमालिक के दरमियान जंग रुकवाने के लिए तजारत का सहारा लिया। अमरीकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया तसादुम में उन्होंने दोनों मुल्कों को तजारती फवायद की पेशकश करके जंग रुकवाई। साल 6 फरवरी को अमरीका ने 104 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन को बेदखल किया था। एक जानिब एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब ट्रंप ने हिंदुस्तान को तनकीद का निशाना न बनाया हो और दूसरी जानिब ट्रंप ने अपने बयानात में मुतअद्दिद बार पाकिस्तानियों की तारीफ की और ये भी कहा कि पाकिस्तान से तजारत की बात होगी, वो बहुत अच्छी मसनूआत बनाते हैं, वो बहुत शानदार लोग। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पेशावर के शोभा बाजार में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा फहद, आगाह कीजिएगा फहद। जी बिल्कुल, पेशावर के शोभा बाज़ार में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी पैमाने पर आग लगी थी जिसने चंद ही घंटों में पूरी मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त डायरेक्टर ऑपरेशन रेस्क्यू डॉक्टर मीर आलम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पता करते हैं। ये आग बड़ी नौइयत की थी जिसमें डिफरेंट केमिकल्स थे। इस मार्केट में डिफरेंट केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें थीं जिसकी वजह से आग पे काबू पाने में हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें हमने 25 व्हीकल्स और 100+ रेस्क्यू डिप्लॉय किए, जिसमें हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट नौशहरा, चारसदा और खैबर ने भी बैकअप दिया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आग फैलने से बच गई, क्योंकि इसके एडजेसेंट बहुत ज़्यादा मार्केटें हैं, बहुत गुंजान मार्केटें, प्लाजे हैं और करोड़ों के नुकसान से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रहम किया है। जैसा कि इनका कहना है कि ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन कूलिंग का अमल अब भी जारी है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर नुकसान हुआ है। तकरीबन 22 से ज़ायद दुकानें जो बताई जा रही हैं जलकर खाकस्तर हुई हैं और आग पर अब मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। जी, सेनेटर फैसल वावदा कहते हैं कि भारत एक बुज़दिल दुश्मन है, मासूम बच्चों को मारता है, अब इसे घर में घुस कर मारेंगे। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के होते हुए भारत की भी मोदी से जान छूट जाएगी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि बानी PTI 3 बार सिपा सलार के खिलाफ फाश गलती कर चुके हैं। PTI MQM 2 बन चुकी है। ईद के बाद PTI में ओहदे तब्दील होंगे। जो हमारा दुश्मन है वो बुज़दिल है, सॉफ्ट टारगेट्स की तरह। पहले भी उसने वॉर की, हमारे मासूम बच्चों को मारा है। अब मासूम बच्चों को मारा है तो ये जो पॉकेट्स के अंदर लोग हैं इनको हम 150, आज ISP ने बताया 150 ऑपरेशन डेली कर रहे हैं, हम घुस के मारेंगे। अपनी सिचुएशन रखी रही तो फिर हम तो फिर यही कहेंगे ना अपनी फोर्सेस को कि भाई हमें मोदी का सर ला के दो, ठीक है। और मुझे लगता है कि हमारे फील्ड मार्शल की बदौलत, आसिम मुनीर साहब की बदौलत ही इंडिया की भी जान छूटेगी मोदी से, कि उसको शिकस्त होगी, ठीक है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल ने उसको 14 साल कैद होनी है। 3 मौके ज़ाया कर चुके, बिल्कुल ज़ाया कर चुके। कौन से 3 मौके? पहला, जब ये चीफ बनने वाले थे आपने तो पूरी कोशिश की थी कि आप उनके 4 सितारे न लग देते। अल्लाह ने उस वक्त भी उनकी मदद की, उनको आज अल्लाह की रहमत से 5 सितारे लग गए। उसके बाद आपने जो धरना किया, फिर जो मरने वाला धरना किया, फिर आपने ये मौका गवा बैठे। फिर आप आके इमेच्योर बातें करेंगे, हम IMF से बात नहीं होने देंगे। भाई IMF MQM PTI पाकिस्तान बन चुकी है। अच्छा, कौन, मुझे आप बताएं कौन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? आप तो पार्टी के अंदर से बातें हो रही है, खान साहब खुद बातें कर रहे हैं सारी, ठीक है। कितने लोगों को रद्द बदल ईद के बाद हो जाना है?
वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि बलोचिस्तान में अगर मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला हुआ तो सूबे की जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। APC भी खारिज इम्कान नहीं है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि ऑपरेशन से मुतल्लिक तमाम सियासी जमातों बिलखुसूस बलोचिस्तान की सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। इम्कान है कि पाक भारत कौमी सलामती के मुशीरों की मुलाकात सऊदी अरब में हो। बानी PTI से मुतल्लिक बात करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि बानी PTI 24 घंटे अपने बयान पर कायम नहीं रहते। इन्हें अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि मुज़ाकरात सिर्फ सियासतदानों से ही होंगे। बानी PTI ने कुछ छुपाना नहीं या दिल में चोर नहीं तो पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं कराते। GHQ हमला केस में सजाएं हुई तो PTI के रहनुमा नाअहल हो जाएंगे। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, फितनतुल हिंद या फितनतुल हिंदुस्तान, बिल्कुल ये ऑपरेशन जिस तरह ज़रब-ए-अज़्म रद्दुल फ़साद जो कामयाब ऑपरेशन थे और ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम उसी को देखते हुए ये कोई तो उस हवाले से जो शवाहिद मौजूद हैं अक्रॉस द कंट्री, नॉट जस्ट बलूचिस्तान लेकिन उसके अलावा भी जो दीगर जहाँ जहाँ शवाहिद मिलेंगे इंटेलिजेंस की जो इंफॉर्मेशन उसकी बेस पे, तो बिल्कुल उनको जो है जानब रसीद किया जाएगा, उनको आइनी हाथों से निपटा जाएगा। बानी PTI ने ख़ुद जो है उनका वो एक तज़ब्ज़ब का शिकार है, उनकी अपनी ही क्लैरिटी नहीं है अपनी थॉट्स में या अपना जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। 24 घंटे गुजरते नहीं, पहले कहा जाता है जी सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, फिर कहा जाता है वही पुरानी गिरदान, पुराना जो राग अलापते हैं कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात होनी है। आई थिंक कि अब ये नागुज़ीर हो चुका है कि इमरान खान साहब को सियासी जमातों के साथ ही इंगेज करना पड़ेगा।